Okay, so if you're running on this track, you call it a race track. Let us say there are two people who are running this race, right? The time taken by the winner to reach the finishing point is known as winner's time. Let us say A is taking 15 seconds to finish this race, and B is taking, let us say, 17 seconds to finish the race. So this 15 is known as winner's time, and the other one would be known as the loser's time, right? So this is nomenclature: winner's time, loser's time, and so on and so forth. Now there are certain standard terms and there are standard phrases which are being used in these type of questions. So what are the standard terms and phrases that we need to really know? Now the most standard term is, in a race of 100 meters, let us say A beats B by 10 meters. Now let me just say that I am trying to do something like this. In a race of 100 meters, A beats B by 10 meters, right? In a 100-meter race, A beats B by 2 seconds. So let's just say these are two statements that we are trying to make. So we're just trying to understand what it says. It says in a race of 100 meters, A beats B by 10 meters. What does it imply? So it is implying that the racetrack is of how many meters? Let's say the racetrack is of 100 meters. So this is the first understanding that we have. A beats B, ये मान लेते हैं A है, beats ये B है, by 10 meters. So who is winning the race? A. He is winning by how many meters? 10 meters. तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त A यहाँ पहुंच जाएगा, B will be still behind, and B is behind by how many meters? 10 meters, right? So you may want to say in a 100-meter race, A defeats B by 10 meters. It is one and the same thing. Now, sometimes this very same sentence is used in a fashion. In a 100-meter race, A can give B 10 meters. Now, what do you mean by give this 10 meters? Now, if you see, in earlier times or in your younger days, let us say you are trying to race with somebody who is much younger to you. And you know for sure that you are going to certainly defeat that person. तो हम उसको क्या बोलते थे? तू आगे खड़ा हो जा और मैं फिर भी तेरे को हरा दूंगा या तेरे को पकड़ लूंगा. यही बात है. Now, whenever two or more people reach the finishing point at the same time, it is known as a dead heat race. इसको क्या बोलते हैं? Dead heat race. Dead heat race का मतलब क्या है? All the finishers are reaching the end point at the same time. So in this case, if I say in a 100-meter race, A can give B 10 meters. That means हम B को क्या बोलेंगे? तू आगे खड़ा हो जा. कितनी आगे खड़ा हो जा? 10 मीटर. और जब हम रेस लगाएंगे तो ऐसे भागते 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 जब फिनिशिंग पॉइंट आएगा तो मैं तेरे को पकड़ लूंगा. समझ में आ रहा है? So the interpretation is it automatically becomes a dead heat race and A and B will reach the finishing point at the same time. तो इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है. अगर मैं सिर्फ लिखने की बात करूं, in a 100-meter race, A can give B 10 meters. इनडायरेक्ट मतलब यही है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों भागेंगे तो ए बी को 10 मीटर से हरा देगा. ये बात समझ आती है? नाउ इन दिस सिनेरियो इफ ए वर टू गिव बी 12 meters, what would happen? In this scenario, if A were to give 12 meters, A ने शान पत्ती में बोला भाई तू आगे खड़ा हो जा 12 मीटर आगे, फिर क्या होता? A क्या होता है A के साथ? A B को कितना एडवांटेज दे सकता है मैक्सिमम? 10 मीटर का. इसका मतलब अगर A पीछे B आगे है, दोनों भागेंगे तो 100 मीटर के अंत में वो 10 मीटर कवर कर लेगा. लेकिन A ने B को कितना एडवांटेज दे दिया, तो क्या वो उसको डिफीट कर पाएगा? खुद हार जाएगा. कितने से हारेगा? 2 मीटर से हारेगा. Now if A gives B 7 meters, what will happen? A will win by 3 meters. Why 13? उसने वो मैक्सिमम एडवांटेज 10 का दे सकता है और उसने एडवांटेज कितना दिया? 7 का. तो उसके पास कितना बच गया? 3 मीटर. इसका मतलब A B को 3 मीटर से हरा देगा. ये बात समझ में आ रही है? तो इट इज जस्ट ए नॉमेनक्लेचर. कुछ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज जस्ट दैट हाउ दे विल बी प्लेइंग विद द वर्ड्स. हमें उतना ही समझना है फिलहाल इसके अंदर, और कुछ नहीं है. ठीक है. उसी तरीके से जो डिफीट होती है या रेसेस में,
ये तो एक दो डिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, और डिफीट जो है वो टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड्स। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब ए यहां पहुंच चुका है, बी अभी पीछे है, और बी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड्स लगेंगे। इसका यही मतलब है। Now, this very statement can also be given in the sense in a 100-meter race, A can give B 2 seconds. Now, in this case, what does it mean? ये वही वाली सिनेरियो कि हम अपने से छोटे के साथ रेस लगा रहे हैं, तो उसको बोला भाई तू पहले भाग ले, तू भाग। कितने सेकंड तक भागेगा वो? और उसके बाद मैं भागना शुरू करूंगा और फिर भी तेरे को एंड पॉइंट पे पकड़ लूंगा, मतलब हम दोनों इकट्ठे पहुंचेंगे। इसका ये मतलब है। अब मान लेते हैं ए ने बी को 3 सेकंड दे दिए, तो क्या होगा? हैं? कौन जीतेगा? बी। कितने सेकंड से? 1 सेकंड। और अगर ए ने उसको सिर्फ आधा सेकंड दिया तो है ए विल विन बाय 1.5 सेकंड। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो उतनी ही दे सकता है। अगर उससे इसने ज्यादा दे दिया तो खुद हार जाएगा, और अगर उससे कम दे दिया तो उतने गैप से वो जीत जाएगा। ये बात समझ में आती है ना? दीज आर जस्ट स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज दैट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस, ये समझाने के लिए। यहां तक बात समझ में आती? कैन गिव, कैन बीट, कैन डिफीट, मीनिंग्स आर सेम। नाउ what is a possible question that can be asked from this learning? जो भी अपने अपनी तक सीखा, इसमें क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा? So let me say examiner can frame this question. Let's say मैं इस क्वेश्चन को टाइप ही करवा देता हूं। In a 100-meter race, A beats B by 10 meters or 2 seconds. What is the speed of A? क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर की रेस में ए जो है वो बी को, ए जो है वो बी को 10 मीटर से हराता है या 2 सेकंड से हराता है, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। सो दिस इज द क्वेश्चन। यस ऑनलाइन गाइस, जिसका भी आंसर आ रहा है आप मेरे को टाइप करके भेज सकते हैं। कितना होता है 50/9? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इन 100 मीटर है। अब जो भी ज्ञान मैंने दिया है उसी में से ये सवाल है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर आई टोल्ड यू सो फार, दैट्स ऑल। इज नथिंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो हमें समझ में आना चाहिए। देखते हैं बेटा। हाँ जी ऑनलाइन गाइस, समझ में आ रहा है सभी को? आदित्य, अनीश, मुस्कान, BSc 12। ये कौन है BSc 112 हमारे साथ का? बी फार्मा, अच्छा। अनीश, नहीं अनीश तो आ गया, चलो कोई नहीं, तो कोई तो होगा। हाँ जी मेरे को आंसर बताइए क्या बन रही है जो भी आपकी। In a 100-meter race, A beats B by 10 meters or 2 seconds. What is the speed of A? B निकल गई? हाँ जी, कितने लोग आंसर आ गया? रेज योर हैंड्स। 1 2 5। कितने लोग का 5 आंसर आया पहले तो ये बताओ। तेरा 5 आया पीछे है? तेरा भी 5 आया? हाँ जी। हाँ 5 आया क्या? एनी आंसर्स? 5। ओके ओके नाउ। हाँ बेटा तुम्हारा कितना बना आगे? कितना है? क्या कर रही है फिर? कुछ तो कर ही रही होगी। हाँ जी तुम्हारा कितना आया? 5 नहीं आया? ओके
Now look, please understand the question first. Let's understand the question. 5.5 B की आएगी. अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है एक 100 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है? 10 मीटर. जब ए बी को 10 मीटर से हराएगा, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब ए यहां पे है तो बी 10 मीटर पीछे. और का मतलब या either this is going to happen or this is going to. दूसरी सिचुएशन में जब ए यहां पे है तो बी पीछे ही होगा और बी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड. लेकिन बी कितने पीछे है वो पिछले क्वेश्चन से पता चल जाएगा, क्योंकि जब ए पहुंच चुका है तो बी कितने पीछे है? 10 मीटर. या फिर जब ए पहुंच चुका है बी कितने पीछे है? 2 सेकंड. इसका मतलब है बी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड. सो दिस डिस्टेंस ऑफ 10 meters इज बीइंग कवर्ड बाय whom in 2 seconds. तो बी कर रहा है ना ये कवर. तो अगर रेशियो निकालोगे जो 5 आएगा वो क्या आएगा? स्पीड ऑफ बी. ये समझ में आ रहा है? पहला अंडरस्टैंडिंग तो ये होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे? स्पीड ऑफ ए. ठीक है. अब स्पीड ऑफ ए के लिए हमें टाइम डिस्टेंस तो पता ही है 100 मीटर. हमें क्या निकालना है? ए का टाइम. हमें पता है ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से 2 सेकंड. ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से 2 सेकंड. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है हमें बी का क्या चाहिए? टाइम चाहिए होगा. व्हाट इज टाइम बाय टाइम ऑफ ए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज 20. तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस इज 20 seconds. So what is the time taken by A to finish the race? 20 minus 2. क्यों? क्योंकि 2 सेकंड से वो उसको हरा रहा है, तो 18 सेकंड. अब हमें क्या चाहिए? स्पीड ऑफ A. डिस्टेंस ट्रेवल इज, ये क्यों करना है? 1/18 रटवाया नहीं था परसेंटेज में? 1/9 11.11 उसका आधा. अच्छा 1/18 नहीं कराया था. 5.5. तो ये मीटर्स. दिस इज द आंसर. तो इस समझ में आ रहा है? तो इसमें सब कुछ आ गया. जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए टाइम एंड डिस्टेंस के लीनियर रेसेस में, वो सारा कुछ इसने एक में ही कवर कर लिया. ठीक है. लाइकली क्वेश्चन दैट यू मे एक्सपेक्ट. द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू मे एक्सपेक्ट इज समथिंग लाइक दिस. क्लियर है सभी को? ओके. हाँ, क्या नहीं समझ में आता हो? हैं? क्या क्लियर नहीं है? क्या नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया. ओके. हम एक बार पहले इसको मैं वापस समझाता हूं. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक रेस हो रही है ए और बी के बीच में. ए बी को 10 मीटर से हरा देता है. इसका मतलब ये है कि जब ए पहुंच गया होगा पीछे होगा. एक सिचुएशन ये. दूसरी सिचुएशन ये बोलता है कि ए बी को 2 सेकंड से हरा देता है. इसका मतलब जब ए पहुंच गया होगा तो बी 2 सेकंड पीछे होगा, यानी बी को 2 सेकंड और पहुंचने में लगेंगे. अब बी जो 2 सेकंड में भागेगा वो कितनी दूरी भाग रहा होगा? 10 मीटर. क्योंकि जब ए पहुंच चुका है वो 10 मीटर पीछे है, ये तो पता ही है. और दूसरी स्टेटमेंट में यानी और का मतलब या तो 10 मीटर पीछे है या 2 सेकंड पीछे है. यही बात है. इसका मतलब है 10 मीटर कवर करने के लिए उसको 2 सेकंड लग रहे होंगे. किसको लग रहे हैं? तो स्पीड ऑफ बी निकल जाएगी. कितनी आ गई? 20 सेकंड आ गई. अब तो ए का टाइम कितना हो गया? 8. हमें क्या निकालना है? नहीं, वो तो दिया हुआ है. स्पीड ऑफ ए निकालना था. टाइम ऑफ ए पता है? यानी आप ऐसे समझो, जो आखिरी के 10 मीटर हैं वो बी ने 2 सेकंड में कवर किए. ये तो समझ में आ गया. तो अगर मेरे को टाइम निकालना है किसका? बी का. या स्पीड निकालनी है बी की, तो 5 आ जाएगी. कैसे आएगी 5? 10 मीटर. ये स्पीड आ गई बी की.
तो अगर मैं आपसे पूछता कि पूरी रेस को करने के लिए बी ने कितना टाइम लगाया, तो कैसे निकालते अपन? स्पीड पता है अपने को और बी को पूरा डिस्टेंस कवर करना है 100 मीटर। बी की स्पीड कितनी है? 5। और डिस्टेंस कितना कवर करना है बी ने? वो तो उसने 2 सेकंड में कर लिया। वहां से हमें स्पीड आ गई। अब ये पूरी पूरी रेस कितनी देर में करेगा बी? किसको लग रहे हैं? बी को पूरी रेस चलने में। पूरी रेस चलने में ए को कितना टाइम लगेगा? ये सब मत देखो, लॉजिक लगाओ। पूरी रेस बी ने 20 सेकंड में करी, कर ली, तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए उसको हरा रहा है नहीं हरा रहा? कितने से? अच्छा, मतलब हराने का मतलब क्या होता है? कौन आगे है? यानी कम टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है? किससे कम टाइम लेगा? बी कितना टाइम ले रहा है? ए 18 ले रहा है और बी कितना ले रहा है? 20। ये समझ में आता है? तो बी को पूरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वाइट, बी को पूरा रेस करने में लग रहे हैं 20 सेकेंड और ए को पूरा रेस करने में लग रहे हैं 18। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अपने को टाइम पता लग गया। अगर स्पीड निकालनी है ए की तो कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगा रहा है, तो स्पीड आ जाएगी। वही आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है? क्या पूछ रही थी अब बता, समझ में है? उसने भी कुछ नहीं किया, उसने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया था बस 50/10 और कुछ नहीं। हाँ वो ठीक है, कोई नहीं हाँ हाँ एक्स्ट्रा समझ गया मैं ओके, नाउ अभी एक नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? ये तो एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ए ने बी को हराया। अब लेट अस से यू नो अनदर टाइप, मतलब जो भी हम कर सकते हैं वो ये है, इन अ 100-meter रेस A beats B by 10 meters and in a 100-meter race B beats C by 20 meters. So in a 100-meter race A beats C by how many meters? 20. बट अरे नहीं, ठीक किया है मैंने क्वेश्चन को। अरे डियर, जो लिखा है वो सही है तो 28 meters. तो सिंपल सवाल ये है कि 100 मीटर की रेस हो रही है, ए बी को हरा देता है 20 मीटर से, और अगर 100 मीटर की रेस बी और सी करते हैं तो बी सी को हरा देता है 100 मीटर से, 20 मीटर से हरा देता है, मतलब रेस 100 ही मीटर की है। तो जब ए और सी भागेंगे तो ए सी को हराएगा या नहीं हराएगा? क्वेश्चन ये कितने मीटर से हराएगा? ओ डियर, ये भाई सब लोग 10 ले लो, वरना ये तंग परेशान हो जाएगी। सारे 10 कर लो। अरे कुछ नहीं है, दोनों आंसर बता दूंगा, टेंशन ना लो। अब और बता दो। अच्छा, 20-20 के केस में 40 आएगा क्या सर? 40? अरे भाई 2 क्वेश्चन है, इसके लिए ठीक कर दिया मैंने। नहीं
2 क्वेश्चन, अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, तुम सब टेंशन मत लो, मैं भी कर देता हूँ। 1 मिनट, देयर आर 2 क्वेश्चंस। लो, इसको 20 कर देता हूँ, और एक चाहिए तो फिर 10 और 20 भी कर दूंगा, टेंशन किस बात की, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, करो बैठ के। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है, दोनों कर लो। हाँ, दोनों कर लो। नहीं यश, आ गया आंसर 40। मुस्कान नहीं, ठीक नहीं है। हाँ जी, पहले का आंसर 38। ओके, चलो, सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। 0 तो नहीं होगा यश। देखो, मान लेते हैं हम ये पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि वैसे लॉजिकली तो देखने में तो यही फील आता है कि वो ए को 10 से हरा रहा है और बी सी को 10 से हरा रहा है, तो ए सी को 20 से हराएगा। दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर, ठीक है। बट इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ये बेसिकली रेशियो से करेंगे तो आसान होगा। जैसे कि मतलब क्या है, देखो ए और बी भाग रहे हैं, मान लो अगर ए 100 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, मान लो 90। और जब बी 100 चलेगा तो सी कितना चलेगा, यही बात है ना। हाउ डू यू कनेक्ट ए एंड सी, द ओनली कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी हैपेंस टू बी माई बी, यही बात है। तो इट इज लाइक अगर ए 100 बी 100 चलता है तो सी 90 चलता है, बी 90 चलेगा तो सी कितना चलेगा। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, ये याद है सभी को? कितने लोगों को पता है इसको कैसे करते हैं सॉल्व? नहीं पता कैसे करते हैं? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहली क्लास में ही पढ़ाते थे। देखो, इसको ऐसे करते हैं, इसको मत घुरा दियो, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा दोबारा। हाँ, तो अगर बी 100 है तो सी 90 है, अगर बी 100 है तो सी 90 है, अगर बी 90 है तो सी कितना है, मान लो ये क्वेश्चन है। बस इसको नीचे लिखने की बजाय मैंने ऊपर लिख दिया। ये क्वेश्चन ऐसा आता था, मान ले तेरे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 100 रुपए, और तेरे को 90 टॉफियां मिलती हैं। टॉफी तो अच्छी लगती है तो समझ जाएगी। अब तेरे पास 90 रुपए हैं तो कितनी टॉफी खरीद सकती है, कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको एक्स मानते हैं, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 90, तो एक्स की वैल्यू बनेगी 90 इंटू 90 अपॉन, कितनी टॉफियां मिलेंगी, 81। सो इंस्टेड ऑफ टॉफीज यहाँ पे मीटर है, अगर ये 100 मीटर चलता है तो ये 90 मीटर चलता है, ये 90 मीटर चलेगा तो कितना चलेगा, हाँ डूड कितना चलेगा, कर तो दिया, 81 लिख दूं, समझ में आ रहा है? सो इट मींस जब ए 100 चलता है तो बी कितना चलता है, 90, और उस वक्त सी कितना चलता है, 18। तो जब ए और सी रेस लगाएंगे, सो बाय द टाइम ए वुड हैव रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट, सी वुड बी स्टिल बिहाइंड। सी कितना पीछे होगा, ये 100 है तो कितना पीछे होगा, 19 मीटर। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा,
19 मीटर से। ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का? मुझे अगले वाले का सही आंसर बताओ इसी में तो। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा है। अरे भाई तुमने बता दिया है, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाकियों को बोल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं बताया वो बताएंगे। है जी? क्या? ये सबसे आसान है, लेकिन और तरीका बता देता हूं मैं तुम्हें। हाँ, और प्रैक्टिकल तरीका तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये पहले एक बार सेकंड वाला निकाल दो, फिर मैं तुम्हें और प्रैक्टिकल तरीका बता दूंगा इसका। आ गया कैसे किया? वेरी गुड, ठीक है। हाँ बच्चे, बना? समझ में आ रहा है? नहीं आया? ये जब मैं पूछता हूँ तभी क्यों कहते हो नहीं आया है? पहले बता दिया कहाँ से नहीं आया। चलो ये बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आया, ठीक है। चलो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई समझो। मान लेते हैं तेरे पास 10 रुपए हैं, और 10 रुपए की तू 2 चॉकलेट खरीदता है 5-5 वाली। अगर तेरे पास 15 रुपए होते तो कितनी चॉकलेट खरीदता? कैसे पता? इंट्यूशन से पता है कि 2 को तो 5-5 वाली दी, तीसरी वाली को 5 की और पकड़ा दूंगा, तो 15 में 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिकली करना है तो ये यूनिट एक्स मानते हैं इसको। यू मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस। देखो रुपए के नीचे रुपए लिखा जाता है और समान के नीचे समान लिखा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 2। तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, यानी 3 टॉफियां आ गई। ये समझ में आ रहा है? और 3 तो तुम्हें लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि 10 रुपए की 2 टॉफी है, तो एक टॉफी 5 रुपए की होगी, तो 3 टॉफी 15 रुपए की होगी। लेकिन अगर हमें यूनिटरी मेथड लगाना होता, अब ये तो चूंकि आसान है अपन ने कर लिया, लेकिन मैथ से कैसे करोगे? मैथ से ऐसे करोगे, उल्टा भी हो सकता है। इसका क्वेश्चन ये भी होता है, मान लेते हैं 10 रुपए की 2 टॉफियां आती हैं, ठीक है, और तू बोले कि मुझे तो 8 टॉफियां खरीदनी है, तो कितने रुपए चाहिए? टॉफी के नीचे टॉफी, रुपए के नीचे। अब क्या करेगा? क्रॉस मल्टी। इसको x मान ले, दिस इंटू दिस इज इक्वल दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा? 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 40। ठीक, इसको एबीसी यूनिट मतलब रेशियो वाली मीटर्स के टर्म में, हाँ अभी कर लेते हैं, कोई बात। हाँ अच्छा, वो अच्छा यूनिट सेम हो गई, ये प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन बी इज रनिंग 100 meters, सी इज रनिंग 90 meters. When B is running, now when B will run 90 meters, C will run how many meters? That is the question. That's all. ये बात समझ में आ रही है? X मान लिया, यूनिटरी मेथड, कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो जब, इसका मतलब क्या है, जब A 100 चलेगा तो B कितना चल रहा है? 90। और जब B 90 चलेगा तो C कितना चलेगा? 81। तो A और C के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 19 मीटर का। हाँ, सेकंड वाला 36 आ गया। अब बता, समझ में आया कुछ? बता, क्या समझ में आया? ओके, ठीक है। ठीक है मुस्कान, गुड। अब जो तुम पूछना चाह रहे हो ये समझ लो। देखो, जब ये 100 है तो ये 90 है। ये रेस कितनी छोटी हुई? यानी इससे 10% कम छोटी होगी, तो ये वाला भी 10% कम होगा। तो 90 का 10% 9 होता है, 9 घटा दे, 81 आंसर। छोट 11.11% घटा देगा। मैं तो इससे अच्छा बता दूं, समझ तो है तुम्हें? 11.11 सर। नहीं बेटा, 11.11 कहां से आ रहा है? सर वो किसका? 90 में से डिडक्ट कितना परसेंट? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देख, बी जब 100 चलता है तो 90 चलता है। अगर रेस 10% छोटी हो गई तो ये भी तो 10% कम चलेगा। यस सर। और इससे भी आसान, अभी कितने से हार रहा है? जब रेस 10% छोटी होगी तो विक्ट्री मार्जिन भी 10% कम हो जाएगा। एक कम, 9 से हार गया, सीधा आंसर है। ले, उससे भी छोटा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब 100 से चलता है तो 10 से हारता है। विक्ट्री मार्जिन कितना है? 10 मीटर का। जब रेस 10% छोटी हो जाएगी तो विक्ट्री मार्जिन भी 10% घट जाएगा। तो 10 का 10% एक घटेगा तो विक्ट्री मार्जिन 9 का हो गया। पहले विक्ट्री मार्जिन 10 का था, ये 9 हो गया, 19 हो गया, क्वेश्चन खत्म।
अच्छा अगर ये रेस 300 मीटर की होती तो क्या होता ए और सी की? सारा क्वेश्चन सेम है। ए बी को 10 मीटर से हराता है, बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो ए सी को हराएगा। लेकिन अब जो रेस हो रही है ना ए और सी के बीच में, वो 100 मीटर की नहीं है, 300 मीटर की है। क्यों? ये ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, लगाने दे। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो मैं दिखा रहा हूं उनको। इंटू 3 कर दिया बच्चों ने सर। और सही किया भाई, ये सही है, कर दिया क्या मतलब है, इंटू 3 कर दिया और वो सही है। मैं इसको तीनों मेथड से करके दिखा दूंगा तुमको, क्यों सही है ये बताऊंगा। उससे क्या होएगा? अच्छा डिस्टर्ब करते हैं सारे। वो आता नहीं है मेरे को, पता नहीं। ये छोटा क्या, अब इसमें ना सिंगल में ना वो मेरे को दिखाता, देखो अभी सिंगल में मेरे को नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों, इसका कुछ सेट। क्या करूं? अच्छा ऐसा होता है क्या कुछ? ये अब क्या आएगा इसमें, क्या करना? ये अच्छा ये कर दिया, अब सिंगल पे, अच्छा अब ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बात तो सही। ओके हाँ अब बताओ, ये 300 मीटर का रेस होगा तो क्या होएगा? 3.3% से कम हो जाएगा। मैं इसीलिए परसेंटेज नहीं बता रहा था तुम्हें, मुझे पता तुम सब गड़बड़ करोगे, मैं इसीलिए नहीं शॉर्टकट बता रहा था, क्योंकि तुम फंडामेंटल तो समझते नहीं हो और सीधा चौका छक्का मारने के चक्कर में हो। एक बात सुन, ओ सुन देवी मेरी बात सुन, जब 100 की मीटर में 19 से हार रहा है, तो जब रेस 3 गुना हो गई तो 3 गुना से हारेगा ना भाई। हाँ बस मैं परसेंटेज इसलिए नहीं सिखा रहा था क्योंकि तुम ये गलती करोगे। सुनो अब पहले फंडामेंटल समझो फिर समझते हैं। जब ए जब ए 100 भाग रहा था तो सी कितना भाग रहा था? 81। जब ए 300 भागेगा तो सी कितना भागेगा? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, कितना भागेगा? 243। कितने से हारेगा? ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा ही दिमाग लगाना है तो ऐसे लगाओ, 19 से हार रहा है, ये ऐसे समझो, प्रैक्टिकल समझो। ये रेस है, 100 मीटर की रेस में कितने का गैप बना? 19 का। अगर ये रेस डबल हो गई तो गैप कितना हो जाएगा? और ट्रिपल हो गई तो बस ट्रिपल हो गया आंसर। 19 30 57, क्वेश्चन खत्म। क्या कर रहे हो? अगर सुन अभी रुक जा, अरे रुक जा देवी सुन, अभी ये रेस मान ले आधी पे रुक गई फिर क्या होता? आदर्श। अगर ये रेस 10% बढ़ जाती तो क्या होता? इसीलिए वो परसेंटेज यूज होता है। जितने परसेंट रेस बढ़ेगी या जितने परसेंट रेस, उतने ही परसेंट का मार्जिन भी बढ़ेगा और घटेगा। मान लो अपन 100 मीटर की रेस में वो 10 मीटर आगे भाग रहा है, तो अगर आप रेस बोलते नहीं 150 भागेंगे, तो उसी प्रपोर्शन में वो गैप बढ़ जाएगा ना, तो 150 में 15 से हारेगा। अगर आपने रेस को 20% बढ़ा दिया, 100 की रेस में मान लो 10 से हार रहा है, तो 120 की रेस में कितने से हारेगा? 12 से। दैट्स ऑल, काम तो वही हो रहा है। वो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो भी आ जाएगा, हाँ तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। 3.3 क्यों लो बेटा? 300। अच्छा ए और बी की भी रेस 300 की है क्या? हाँ कौन सा करके दिखाऊं पहले बताओ। एक मिनट नहीं, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, लिसन, क्वेश्चन ये था ए और बी की रेस है 100 मीटर की, ये 100 चलता है तो ये, और जब ये 100 चलता है तो ये 90, ये गिवन है। अब बोल रहा है अब ए और सी रेस लगाएंगे, लेकिन ये 300 मीटर की रेस लगाएंगे। है हाँ, फिर तो सब कुछ अलग, कुछ सब पूरा ही अलग हो जाता।
क्यों नहीं आएगा? क्या कह रही है तू? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं ये यार मैंने कहा कि द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस व्हेन 100 की रेस में एग्जैक्टली सेम का मतलब व्हेन A is running 100 meter, A is defeating B by 10 meter in a race of 100 meters. B defeats C by 10 meters in a race of 100 meters. Now when A will defeat C by how many meters in a race of 300 meters? That is the only question. So तो जो A और C की रेस है वो चेंज हो गई बस. क्वेश्चन सेम का मतलब A और B की सेम रेस है, B और C की सेम रेस है, A और C की रेस अलग हो गई. अब बताओ क्या होगा? दैट वाज द क्वेश्चन. तो जब A, B और C हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो अगर 100 मीटर की होती तो 19 से हार रहा था, तो अब 300 मीटर की रेस हो जाएगी तो 57 से हारेगा. बस क्वेश्चन खत्म. हाँ बेटा समझ में आ रहा है पीछे? हाँ जी, कुछ कंफ्यूजन कम हुई? हाँ बेटा तुम्हारा समझ में आ रहा है कुछ? हाँ कंफ्यूजन कम हुई? क्या पूछ रही है बता. को भी 300 ले लो. हाँ समझ. ठीक है, गॉट इट. फिर ठीक है, 3.33 आएगा उस केस में. हाँ जी, आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है. नाउ द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स मैं इसीलिए वो परसेंटेज इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था, वो शॉर्टकट है मेरे को पता है, लेकिन पहले तुम्हारा फंडा ठीक हो जाए तो हम वो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इस केस में उसने पकड़ लिया कि 3 से ही तो गुणा करना है, क्योंकि 100 में अगर 19 का मार्जिन ऑफ डिफीट है तो 300 में 3 गुना हो जाएगा, काम खत्म हो गया, यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है. बट देन सब लोग पता नहीं क्या क्या ही करने लग गए. एनीवे, हाँ जी ऑनलाइन सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर. चलिए गुड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडली लीनियर रेसेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इसी में वो कॉम्प्लेक्सिटी बोल देगा, जैसे वो कह रही थी सर 10 और 20 कर दो फिर क्या होगा, जैसे वो कह रही थी ना कि A जो है 100 भागता है तो B कितना था 90. अच्छा, और B जब 100 भागता है तो C 80. सब अब जब A और C रेस करेंगे तो कितने से हराएगा, ये क्वेश्चन है. यही बात है. अब कोई जरूरी नहीं है A और C का रेस 100 मीटर हो. मैं ये कह सकता हूं A और C की रेस जो है 280 मीटर्स की है, तो बताओ C को कितने से हराएगा. दैट कुड बी अ क्वेश्चन. तो अब करोगे क्या? जब ये 100 तो ये 80 तो B 90, तो ये कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टी दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 100, कितना बन जाएगा 72. समझ में आ रहा है? तो जब A 100 चलेगा तो B 72 चलेगा. अब फिर से यूनिटरी लगा लो, जब A 100 चलेगा तो C, कोई बात नहीं, तो जब A 280 चलेगा तो C कितना चलेगा, यही मतलब है ना. यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं अपन, 280 इंटू 72 बाय 100. अब और ज्यादा दिमाग लगाना है तो ये 28% है, 28 से हार रहे हैं, तो रेस कितनी होगी 2.8 टाइम्स हो गई. तो 28 गुना में 28 करना पड़ेगा. 2.8, 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 784 यानी 78.4 ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो बस नहीं तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा 280 में से माइनस कर देना. अरे तुम इसको छोड़ दो यार, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, छोड़ो इसको, भूल जाओ. यूनिटरी मेथड लगाया, वैल्यू आ गई, तो जब ये 280 चलेगा तो ये इतना चलेगा, 280 में से माइनस कर दोगे तो कितने से हारेगा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो भी अलग हो सकता है. मान लो A B को 90 10 से हरा रहा है 100, हो सकता है B और C का जो रेस है वो 100 का ना हो, 150 का भी हो सकता है. यूनिटरी मेथड निकाल के उसको सेम लाइन पे लाना पड़ेगा. मान लो तुम ये कह रही हो कि A 100 है B 90 है, B और C जब रेस कर रहे हैं तो ये 150 की रेस कर रहा है, तो ये इसको मान लो 30 से हरा रहा है, तो इसको यूनिटरी मेथड करके यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, तो A और C में रिलेशन आ गया डायरेक्ट. अब जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, साफ चवाचट माइंड से नहीं. ओके, सो प्राइमरली दिस इज व्हाट यू विल हैव, यू नो, काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ लीनियर रेसेस. नो प्रॉब्लम्स, यहां तक कोई दिक्कत है? देन वी मूव डाउन टू व्हाट यू कॉल्ड एज अ सर्कुलर रेसेस. तो जब रेस गोलाई में होती है तो हम उसको सर्कुलर रेसेस के नाम से जानते हैं.
तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल है। अभी मैं कुछ एक बार समझाने के लिए आपको सिर्फ कर रहा हूं। मान लेते हैं एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ठीक है। ए मान लेते हैं ऐसे भाग रहा है, बी भी ऐसे ही भाग रहा है। मान लेते हैं ए को पूरा चक्कर काटने के लिए 5 मिनट लगते हैं। ए को पूरा चक्कर काटने के लिए 5, तो 5 मिनट के बाद ए कहाँ होगा? स्टार्टिंग पॉइंट को। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही बी को पूरा चक्कर काटने के लिए 7 मिनट लगते हैं। बी को पूरा चक्कर काटने में तो 7 मिनट के बाद बी कहाँ होगा? अरे बस, अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? क्यों क्यों? भाग के देखो। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, दिस आंसर इज 35, लेकिन हो क्या रहा है ये समझो। ए जो है वो 5 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, फिर कब होगा? अगली बार कब होगा? 10, फिर कब होगा? फिर कब होगा? 20, फिर 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। हर 5 मिनट के बाद ए स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, और बी कब कब होगा यहाँ पे? एलसीएम निकालना है मतलब। दैट मीन्स this is nothing but, this process is nothing but LCM of 5 and so पहली बार दोनों लोग इकट्ठे कब होंगे? 35 मिनट पे, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और वो कब होगा? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, इस तरीके से होगा। तो इकट्ठे कब होंगे? 35वें मिनट पे ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है और बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? बोथ आर एट स्टार्टिंग पॉइंट, विच इज नथिंग बट LCM ऑफ time taken by A to finish the round and time taken by B to complete. अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं A को उल्टा चला रहा हूं। अब बताओ दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? पक्का? क्योंकि वो चाहे ऐसे भागे या ऐसे भागे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उतने ही टाइम पे पहुंचेगा। समझ में आ गया सबको? इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जामिनर हमें टाइम नहीं देगा, पहली बात बताता हूं। वो क्या देगा? वो हमें हमेशा स्पीड और डिस्टेंस देगा। तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हमें एलसीएम निकालना है, चाहे वो ऐसे चले या चाहे ऐसे चले। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मीटिंग टाइम हमें चाहिए, सो दैट इज द एलसीएम ऑफ बोथ द टाइम टेकन बाय ए टू रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड द टाइम टेकन बाय बी टू रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? शुड नॉट बी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस जस्ट टेक अ स्लाइटली बेटर एग्जाम टाइप एग्जाम्पल जो पॉसिबल है। क्या चीज? हाँ, अभी अभी पहुंचेंगे, अभी सब करेंगे। भागते हुए कब मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, कितनी दूरी पे मिलेंगे, वो सब कुछ देखेंगे। और 2 लोग नहीं, 3 लोग भी देख लेंगे। फीलिंग आएगी तो हम 4 लोगों से भी मिलेंगे, हम सारे करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। लेट अस से द रेस ट्रैक इज ऑफ लेंथ ऑफ, मान लेते हैं 1200 मीटर का ट्रैक है, और लेट अस से ए की स्पीड हम मान लेते हैं 120 मीटर्स पर मिनट, और बी की स्पीड हम मान लेते हैं लेट अस से 70 मीटर्स पर मिनट। सेकंड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। स्पीड है ए और बी की। अब आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, व्हेन विल ए एंड बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, कि ए और बी मान लो कहीं भी भाग रहे हैं, मान लो सेम डायरेक्शन में, जो ये जो डायरेक्शन है दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो नीचे की तरफ होती है वो क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी हमारी ऐसे चलती है। तो जो अगर इधर भागते हैं तो हम इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, उधर भागते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आती है हमें। अब क्वेश्चन ये है, ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? कैसे क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? किसका किसका? टाइम। हाउ डू यू फाइंड टाइम ऑफ ए? टाइम ऑफ ए इज डिस्टेंस which is 1200, speed is, so this is how much? 10. And how do you find time of B? 120 by
अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम ऑफ 10 एंड एलसीएम ऑफ 120/7। कैसे निकालते हैं एलसीएम इन दोनों का? ओके चलो मैं पहले एलसीएम निकालना सिखाता हूँ फ्रैक्शन का। मान लेते हैं हमारे पास 2/3 एंड 4/5 है, इसका मुझे एलसीएम लेना है, ठीक है? तो इसका तरीका ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है? अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना होता है तो मुझे करना पड़ता है एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये इसका डायरेक्ट मेथड होता है किसी भी फ्रैक्शन। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो फ्रैक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इज 8/10 अ स्टैंडर्ड फॉर्म? नो, बिकॉज देयर इज इसको 2 into 4 and 2 into 5, ये कट जाए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो जब भी ये वाला मेथड हम यूज करते हैं, न्यूमरेटर का अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। क्या बात ध्यान रखनी है? दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, कहीं मिलेगी नहीं आपको। किताब में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देते हैं, वो गलती करते हैं। कई किताबों में गलत छपा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इसका एलसीएम, अब 10 को अपन 10/1 लिखें तो चलेगा? तो बताओ इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 10 and 120 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 1 and 7। तो इसका एलसीएम कितना होगा? ये आता है ना, एलसीएम निकालना आता है या सिखाना भी आता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकलेगा एलसीएम। तो इसका मतलब क्या है? दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 120। अच्छा, अगर बी को उल्टा भगाते तो क्या होता? तो भी आंसर क्या होता? किसका दोबारा बताऊं? अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले, जो भी निकालना है ऊपर वाले का वो कर दो, बचा हुआ नीचे वाला। इन दोनों का एचसीएफ होगा 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका एलसीएम होगा 15। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। मान लो मैं 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है, तो पहले ना 6 के फैक्टराइज करो। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2-3 मेथड होते हैं, मैं जो सबसे कॉमन स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बता रहा हूँ। 8, इसमें से कॉमन है ना ये एचसीएफ होता है। और अगर एलसीएम लेना है 6 और 8 का तो इसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यूं का यूं उतार दो। 2 2 जा 4, अभी भी स्मॉलेस्ट 2, 3 का 1 आ गया। अब चूंकि यहाँ कुछ बचा नहीं, अगला 3 लेना पड़ेगा। 3 1 जा 3, तब तक करना है जब तक 1 1 ना आ जाए। तो अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो इसका बनेगा 2 into 2 into 2 into 3। हाँ, ये एचसीएफ है, एलसीएम। और अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ऊपर वाले का मान लो एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4, 3 और 5 का एचसीएफ 1। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर ये एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का क्या बेटा? किसका? हाँ, एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ बनेगा 4, एचसीएफ बनेगा 1। तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना? समझ में आ रहा है एचसीएफ एलसीएम? ओके। तो इसका मतलब है ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? वन 120/1 ना? क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो एक्चुअल एग्जाम टाइप है। मान लेते हैं ए ऐसे भाग रहा है और बी इधर भाग रहा है, जो ये पूछ रही थी। तो अब ए ऐसे भाग रहा है, बी ऐसे भाग रहा है, ऐसे 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 कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, है ना? क्योंकि ये फास्ट है, ये इधर जाएगा, इधर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इनकी पहली मुलाकात कब होगी?
ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों को? स्पीड का क्या करें? क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। तो कितनी हो जाएगी? 120 प्लस 70, तो बन जाएगा 1200 अपॉन 190। तो फर्स्ट मीटिंग आएगी 120 बाय 19, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सर ये मीटिंग वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा बता दो। मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लेते हैं जो ए है हमारा वो ऐसे चल रहा है, ए ऐसे भागेगा, और बी जो है वो ऐसे भागेगा। तो चूंकि ये फास्ट है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा चलेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात होगी यहाँ पे। तो ये पूछ रहे कितनी देर में मुलाकात होगी यहाँ पे। तो जब भी टू बॉडीज आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हमने रिलेटिव स्पीड में पढ़ा क्या था? क्योंकि दोनों मिलके डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। सो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 1200। ये ग्रीन और ये येलो मिला के कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200। तो 1200 कितनी स्पीड है इसकी? 120 है और इसकी 70 है, तो टोटल स्पीड कितनी होगी? 190। तो 1200 बाय 190 इज 120 बाय 19 विच इज 6.3 मिनट्स के बाद पहली मुलाकात होगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, ये तो है इनकी। मुझे ये बताओ कि कितने डिस्टेंस पे होगी इन टर्म्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज? इसमें एंटी क्लॉक कौन सा है? ग्रीन वाला है ना, ए। हाँ, जो ग्रीन है। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए कितना है और टाइम कितना है? जो भी आएगा कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 12 6 720 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 757। चलो अप्रोक्सीमेटली 757 आ रहा होगा मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन से? अगर फर्स्ट मीटिंग कहां पे होगी? 757 मीटर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी कितनी है? 120, सॉरी हाँ, और टाइम कितना है? कितना आना चाहिए इसका आंसर? 443 आना चाहिए, तभी तो 1200 बनेगा। ये 13 बन गया क्या? ये 10 और 10 20, हाँ ठीक है 1200 अप्रोक्सीमेट लिया है मैंने। सर ये बी का टाइम 120 बाय 19 कैसे है? टाइम है ना, ये देख, ओके सर। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस है, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज में कब होगी? 757 इस पे। क्लॉकवाइज में कहां पे होगी? 443 अप्रोक्सीमेटली। 2 बजे। तो दोनों मिला के 1200, समझ में आ रहा है? ये कौन सी मुलाकात है? ये फर्स्ट मुलाकात। और कहां पे है? इतनी खुश हो रही पहली मुलाकात में, तो दूसरी मुलाकात कब होगी? पहली मुलाकात हुई 120 बाय 19 मिनट्स पे, तो सेकंड मुलाकात कब होगी? उतना ही टाइम और लगेगा। मान लो ऐसे पहुंचने में 5 मिनट लगे, तो फिर वापस ऐसे पहुंचने में इकट्ठे 5 मिनट लगेंगे। समझ में आ रहा है भाई? दोनों ने मिलके ये डिस्टेंस 5 मिनट में कवर किया, मिलने के बाद वैसे उसी स्पीड से भाग रहे हैं, फिर उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और मतलब डबल। हाँ, मतलब पहली मुलाकात मान लो 5 मिनट में हुई, तो अगली मुलाकात 10 मिनट में हो जाएगी, अगली मुलाकात 15, ऐसे होती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो जैसे 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, ऐसे क्वेश्चन जो आएगा, जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है
कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले उनकी कितनी बार मुलाकातें हुई हैं। हाँ, सब कुछ, सब क्वेश्चन रिमेन सेम, क्वेश्चन रिमेन सेम। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा? कितना है? अरे अभी किया तो था, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोनों? 120 मिनट्स पे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी बार मिलेंगे ये? क्यों? 19 टाइम्स। ऐड रेशियो कहां से आया? हाँ वो तो हमने भी करा है, ये 19 कैसे निकाला मैं तो पूछ रहा हूँ। 12 + 7 एक क्यों? ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाएं, ठीक है, लेकिन आंसर गलत है, आंसर 18 आएगा क्योंकि मैंने अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट बोला। ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहली मुलाकात, देखो पहली मुलाकात हुई है 120/19 मिनट पे, अगली बार मुलाकात होगी 2 × 120/19 मिनट पे। समझ में आ रहा है? हाँ 120 यानी अप्रोक्सीमेट 6 मिनट, अगली बार भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम, यानी डबल टाइम हो गया। तीसरी मुलाकात कब होगी? ये पहली थी, तीसरी मुलाकात होगी 3 × चौथी मुलाकात कब होगी? होती रहेगी। 18th मुलाकात कब होगी? ये तो जीपी बन गया सर। ना जीपी नहीं है ये, एपी है। 19वीं मुलाकात कब होगी? अब 19वीं मुलाकात अगर हम ध्यान से देखें तो कितने मिनट पे हो रही है? 120, और 120 मिनट पे हमारी स्टार्टिंग पे मुलाकात हो रही थी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 19वीं मुलाकात कहाँ पे हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी बार मुलाकात हुई है? 18, ये क्वेश्चन है। कुछ समझ आ रहा है? टेन मिनट्स मतलब स्टार्टिंग के रेफरेंस से है ना, मतलब 5 मिनट और लगेंगे। हाँ 10 मिनट्स, हाँ हाँ ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इसको ये समझाने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट की जो मुलाकात है, स्टार्टिंग पॉइंट की जो मुलाकात है वो 120 मिनट की है, और हर एक मुलाकात 120/19 की है, तो नंबर ऑफ मुलाकात डिवाइड करने से आ जाएगा। भाई टोटल आपके पास 100 रुपए हैं, एक टॉफी की कॉस्ट 5 रुपए है, तो कितनी टॉफियां खरीदोगे? डिवाइड ही करोगे। तो फाइनल मुलाकात, शादी कहां पे हो रही है? 120 मिनट बाद, उसके पहले कितनी बार मिल रहे हो? 18 बार। ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डिवाइड करोगे तो 19 आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन जो 19वीं मुलाकात है वो स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ पे है, तो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट अगर क्वेश्चन है तो उसमें से एक आप माइनस कर दोगे। है मैंने बोला ना अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट। पहली मुलाकात हुई, 120 मिनट बाद तेरी शादी होनी है, शादी से पहले कितनी बार मुलाकात हुई? 18 बार ना, 19 बार मिला के हुई। क्या हुआ? वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है भाई। तो इसमें जो 19 आ रहा है वो 19 स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड करके आ रहा है। समझ में आ रहा है? देख पहली मुलाकात 120/19, दूसरी 2 × 100, तीसरी 3 × चौथी, तो 19वीं × 120/19, तो 19वीं मुलाकात 120 मिनट पे हो रही है। लेकिन हमें पता है 120 मिनट पे अपन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, अपन दोनों बोले ए और बी। ओके ठीक है, तो ए और बी नो प्रॉब्लम। क्यों रुका सर ये? हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो? सर ये जो 19 तक की क्यों रुके अपन?
क्योंकि 19 पे अपनी पास वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात हो रही है ना, जो शुरू में क्वेश्चन किया था। कहाँ पे सर? ये देखो फर्स्ट यहाँ पे जब चले, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे अपन? नहीं, अच्छा, यहाँ ये फोन पे 120 मिनट के बाद 120 मिनट पे मिलेंगे, है ना? Yes, इसलिए हम अब मैं ये क्वेश्चन ये कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले आप कितनी बार मिले हैं? तो जब 120 मिनट पहुंच गए तो वहां रुकना पड़ेगा ना, yes सर। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट से चले और फिर क्या हुआ, ऐसे चले, मिले, फिर मिले, ऐसे मिले, मिलते गए और ऐसे मिल के अलग अलग लोकेशंस पे मिले और फाइनली हम कहाँ मिले? स्टार्टिंग पॉइंट पे। कब मिले स्टार्टिंग पॉइंट पे? 120 मिनट पे। तो क्वेश्चन ये है कि 120 मिनट पे जब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले तो उसके पहले कितनी बार मुलाकात हुई? तो इसलिए हम 19 पे रुक गए, क्योंकि जो 19वीं मुलाकात थी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थी और क्वेश्चन हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट तक ही उसने पूछा है, इसलिए हम रुक गए वहां पे। ओके सर। क्लियर है? यहां तक समझ आ रही बात? ओके, नाउ इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या देख रहे हो भाई? उसमें इतना सीरियसली लगे हुए हो दोनों, बहुत देर से लगे। तो समझ में आ गया तुम्हें ये सब? हाँ बेटा, आया तेरे को? चलो फिर ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेम थिंग। क्वेश्चन सेम है, ठीक है? तो 1200 मीटर्स ए इधर चल रहा है, लेट्स से ए जो है वो 120 से चल रहा है और बी जो है वो 70 से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? नाउ पहले क्या था? ऑपोजिट डायरेक्शन थी, नाउ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? कितने लोग 120 बोल रहे हो? अच्छा, 1 2, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों की मुलाकात कब होगी? स्टार्टिंग पॉइंट पे, हाँ, कितना आएगा? तो 120 और 70 का एलसीएम क्यों लेना चाहती है? नहीं, 120 क्या है? स्पीड है ना, तो टाइम निकालो। टाइम ऑफ ए इज 1200 अपॉन 120, टाइम ऑफ बी इज 1200 अपॉन 70, इसी का तो एलसीएम लेना है ना, यही तो आएगा। मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए चाहे इधर भागो या सेम डायरेक्शन में भागो, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लग रहा है ना। मान लो 5 मिनट लग रहे हैं ऐसे भागने में, तो ऐसे भागने में भी 5 ही मिनट लगेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए कोई चक्कर नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में भागोगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम निकालने का एक ही तरीका है, उनके टाइम का एलसीएम, उनके टाइम का एलसीएम। और टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, और फ्रैक्शन बनेगा तो मैंने उसका बताया था, एचसीएफ अपॉन एलसीएम वाला पूरा मेथड। तो कितना आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोनों? 2 घंटे बाद 120, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा पहली बार कब मिलेंगे, कितनी दूरी पे मिलेंगे? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगे? ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, दोनों स्टार्ट करा, ये ऑलरेडी फास्ट है तो ये भागेगा, ये ऐसे भागते भागते गैप बढ़ेगा, ये ऐसे भागेगा, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके उसको पीछे से पकड़ लेगा, यही बात है। अब एक बंदा अगर उसको पकड़ना चाहता है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको एडिशनल? कैसे करोगे? पहली बार कब मिलेंगे, कैसे निकालोगे? टाइम निकालना है हमें, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है? रिलेटिव डिस्टेंस 1200। स्पीड क्या लें, क्यों लेनी है? चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड कितनी बनेगी? 120 माइनस 70, सो विच इज 1200 डिवाइडेड बाय
50 विच इज 24। समझ में आ रहा है? तो पहली मुलाकात होगी 24 मिनट में। सेकंड कब होगी मान लेते हैं 48, वेरी गुड। थर्ड कब होगी 72 मिनट पे। चौथी मुलाकात कब होगी और पांचवी मुलाकात कब होगी? और 120 पे हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कितनी बार मुलाकात हो रही है? 4 बार। या फिर हम ये कर सकते थे फाइनल मुलाकात 120 पे और हर एक मुलाकात 24 पे, तो नंबर ऑफ मुलाकात 5। लेकिन जो पांचवी मुलाकात है वो स्टार्ट। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। जनरली तो नहीं पूछता है ऐसा, अदर देन स्टार्टिंग ही पूछता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग पूछेगा तो 5, अदर देन स्टार्टिंग पूछेगा तो 4। क्योंकि मैंने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ मेनी टाइम। बस यही पूछ रहा हूं, अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मुझे ये बताइए पहली मुलाकात कहां पे होगी? बाकी निकालो क्या है। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ए, स्पीड कितनी है 120, टाइम कितना है? पहली मुलाकात होगी 24 × 12 कितना बनेगा 2। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है ए पहले फर्स्ट राउंड पूरा करेगा 1200, फिर सेकेंड राउंड पूरा करेगा 2400 और फिर 480। समझ में आ रहा है? ए का कौन सा राउंड है ये? थर्ड राउंड। समझ में आ रहा है? पहले पता है मुझे ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2880, तो 2880 ट्रेवल करेगा तब मुलाकात होगी। यानी फर्स्ट राउंड चलेगा 1200, सेकेंड राउंड चलेगा 2400 और फिर यानी कि ए के लिए कौन सा राउंड है ये? थर्ड राउंड। और अगर बी का निकालोगे आंसर सेम आएगा, तो स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो इसकी ये 70 × 24 कितना बन रहा है? इसका मतलब है बी की अगर हम बात करें तो बी ने पूरा एक राउंड लगाया, फर्स्ट राउंड 1200 और सेकेंड राउंड 480। तो जो बंदा फास्ट होता है वो स्लो वाले से हमेशा एक राउंड एक्स्ट्रा चलेगा, वो तभी उसको पकड़ेगा। क्यों? एक राउंड एक्स्ट्रा चलने का उसको पकड़ना है ना, तो ही मस्ट डेफिनेटली ट्रेवल 1 राउंड मोर ऑलवेज। एक राउंड जैसे ही उसने एक्स्ट्रा चला वो उसको पकड़ लेगा। सो द विनर विल ऑलवेज रन 1 राउंड मोर देन द लूजर। तो अगर ए की बात करें तो ए का तीसरे राउंड में, बी का दूसरे राउंड में, सेकंड राउंड में। कहां पे मुलाकात होगी? 480 इंटू कौन से डायरेक्शन में? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहली मुलाकात होगी 480 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, फिर हम तीसरे बंदे को भी ले आते हैं। सो लेट्स से क्या ए 120, बी 70, सी 130। ठीक है, ये इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, ये तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? प्रोवाइडेड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू मी एज 1200। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, क्या करोगे? तीनों का क्या एलसीएम? तीनों के 130। हाँ, गंदी तो है राइटिंग, इतनी भी नहीं है कि 1 आवर नजर आए।
तो टाइम ऑफ ए 1200 by 120, टाइम ऑफ बी 1200 by 70, टाइम ऑफ सी 1200 by 130। तो मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ 10 यानी 10 by 1, 120 by 7 एंड 120 by 13। तो वंस अगेन इसका एलसीएम बनेगा 120 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम। यानी कि ये तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? अच्छा, अगर मैंने सी को कहा कि उल्टा भाग रहा है, फिर ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? अच्छा, अगर बी को भी उल्टा भगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आती है? सो तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तीनों के टाइम का एलसीएम। एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब प्रॉब्लम आएगी शुरू। मान लेते हैं ए और बी इधर भाग रहे हैं और सी इधर भाग रहा है, ठीक? ए और बी एंटी क्लॉकवाइज और सी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये तीनों अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? और अगर हाँ, तो कब मिलेंगे और कहां कहां मिलेंगे, या कब कब मिलेंगे और कहां कहां मिलेंगे? कैसे करोगे? एक साथ का क्या मतलब? एक तरफ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे करेंगे? ए बी और सी तीनों इकट्ठे होने, तो मुझे बताओ ए और बी की मुलाकात कब कब होएगी? 24, अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले। करूं या वापस करने की जरूरत है? 24 मिनट्स में। अब चूंकि हमने ए और बी कर लिया, किसी एक को हम फिक्स मान लेते हैं, मालूम ए को मान लिया, तो ए और सी की मुलाकात कब कब होएगी? है क्या 120? मतलब टाइम निकालना है ना? टाइम कैसे निकाल? टाइम ऑफ ए एंड सी, डिस्टेंस ए और सी इतना है, स्पीड कितनी लूं इसकी? 120 प्लस कितना आ जाएगा? 4.8। 4 ठीक है, विच इज 48/10 विच इज 24/5 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? ए बी के भी साथ हो और ए सी के भी साथ। कब होगा इन दोनों का एलसीएम? ए बी सी इकट्ठे कब होंगे? जब ए बी के भी साथ हो और ए सी के भी। अब ए बी के साथ होगा 24 मिनट, 48 मिनट, ऐसे ऐसे होगा। ए सी के साथ कब होगा? 24/5, 2 इंटू 24/5, 3 इंटू 24/5, 4 इंटू 24/5 एंड 5 इंटू 24/5। यानी 24वें मिनट पे ए सी के भी साथ है और ए बी के भी साथ है। बेसिकली हमने क्या किया? इन दोनों का हमने एलसीएम ऑफ 24/1 एंड 24/5। कैसे निकालते हैं एलसीएम? एलसीएम ऑफ 24 डिवाइडेड बाय, तो ये बनेगा, इसका मतलब हर 24वें मिनट पे तीनों। अब कोई जरूरी नहीं है ए को लोगे, आप बी को भी फिक्स मान सकते हो। बी और सी का टाइम निकाल के दोनों का एलसीएम लोगे तो भी यही आंसर आएगा। आ रही बात समझ में?
कितने डिस्टेंस पे होगा, किसी का भी स्पीड इनटू टाइम निकाल दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो मैंने बी को भी उल्टा कर दिया फिर क्या होता? समझ में आया? फिर क्या करोगे उन दोनों का? अच्छा अब ये बताओ ये तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कितनी बार मिलेंगे? सेम लॉजिक आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं 120 पे और हर बार मिल रहे हैं 24 पे, तो नंबर ऑफ मुलाकात इज 5 विच इंक्लूड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, सो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट इट इज 4। और अगर ये डायरेक्शन कर दिया तो पहले हम ए और बी का निकालेंगे टाइम, फिर हम ए और सी का टाइम निकालेंगे, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, काम खत्म। अच्छा एक और बंदा होता फिर, इतना आएगा नहीं वैसे, कैट में भी नहीं आएगा, फिर क्या पर करोगे कैसे? किसी एक को कांस्टेंट मान लो, ए को भी ए और बी, फिर ए और सी और ए और डी, तीनों का मुलाकात आ जाएगी, तीनों का एलसीएम जो होगा उस पॉइंट पे सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ मुलाकात निकालनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट की मुलाकात डिवाइड बाय ईच मुलाकात और रिपीट, द क्वेश्चन विल रिपीट सेम। सो दिस इज द possible questions that you will come across in terms of circular. I've tried to cover almost all varieties in terms of circular races also. बोलिए समझ में आती है बात यहाँ तक? Any problems? Anybody? Any? हाँ जी online, any issues on this? कोई problem है? No sir. Okay, so then we'll take up with clocks. 5 मिनट टाइम ही ना खत्म हो जाएगा, 22-20 मिनट पड़े। क्या क्या हुआ? पंखा एक बार करना है इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, देख के उस तार को देख लेना। नहीं ज्यादा नहीं, 20। ओके एक बार दिखाना उसमें और क्या बचा हुआ है। क्लॉक्स, लीनियर सर और क्लॉक्स बचा है ना, ठीक है। तो चलो मैं क्लॉक्स पढ़ा देता हूँ पहले। क्लॉक क्या होता है? बस वो दिखा रहे हैं। ये 12 है, 3 है, थैंक यू। इसके बाद भी तुम्हारी कोई क्लास है क्या? है? ओके, सो दिस इज हाउ अ क्लॉक मतलब लुक्स लाइक। सो दीज आर लेट अस से यू नो नीडल्स। तो जो ये ब्लैक वाली नीडल है इसको हम मिनट हैंड बोलते हैं और इसको हम आर हैंड बोलते हैं, और इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं इसमें, ठीक है, 5 डिविजन्स होते हैं। एक अगर हम एक क्लॉक की बात करें इसमें टोटल 360 डिग्रीज होता है पूरे सर्कल में, और चूंकि ये क्लॉक 12 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये वाला जो गैप है ये 30 डिग्री होता है, बिकॉज 360 डिवाइडेड बाय 12 30 डिग्री। और चूंकि ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये वाला जो गैप होता है ये 6 डिग्री का गैप होता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, प्रॉब्लम, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं मैंने एक मिनट हैंड ले लिया और एक आवर हैंड ले लिया। अगर मैं एक 60 मिनट की बात करूं, 1 घंटे में जो मिनट हैंड है ब्लैक वाला वो पूरा एक चक्कर मार लेता है, कितने डिग्री चलता है ये? तो आवर हैंड कहां पहुंचता होगा? मान लो यहां से यहां तक 30। इसमें कोई डाउट है? तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो ये कितने डिग्री चलेगा? 60 मिनट में 300, 1 मिनट में 6 डिग्री।
ये कितना चलेगा? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें बात क्या है? इसमें बात ये है, पेन देना एक मिनट। ये हमारी मान लो ब्लैक कलर में ये हमारी मिनट हैंड है, ठीक। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री आगे आएगा, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में ये रुका तो नहीं हुआ, ये भी चलेगा। कितना डिग्री चलेगा? आधा डिग्री। तो अब इन दोनों में गैप कितना हो गया? 5.5 डिग्री, क्योंकि 6 डिग्री ये आगे बढ़ा और आधा डिग्री ये आगे बढ़ा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5.5 डिग्री। ये गैप है, ध्यान रखना, ये चलना नहीं है, ये क्या है? गैप। समझ में आ रही बात? सो दिस इज अ गैप। कितना गैप है? 5.5 डिग्री का गैप। कितनी देर में हो रहा है ये गैप? 1 मिनट। तो ये हमें समझना है, हमें समझना है गैप क्रिएटेड या कवर्ड। अगर कवर भी करना हुआ तो भी इतना ही लगेगा। गैप क्रिएटेड इन 1 मिनट कितना है? 5.5 डिग्री विच इज 11/2 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी 1 मिनट समय में 11/2 डिग्री का हम गैप बना रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री का गैप बनाना है तो बताओ कितना टाइम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड, 2/11 मिनट्स। याद रहेगा ये? 1 डिग्री का गैप कितनी देर में बनता है? 2/11। फिर से बोलो, 1 डिग्री का गैप कितनी देर में बनेगा? यहां तक याद रहेगा? अब मिनट टाइम, 1 मिनट में कितना गैप बन रहा है? यानी 1 मिनट समय बीता तो इतना गैप हो गया। मैं कह रहा हूं मुझे 1 ही डिग्री का गैप चाहिए, ये बता कितना टाइम लगेगा? तो मैं बोलूंगा 2/11 मिनट लगेंगे, ये मतलब है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि भाई मान लो 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुई ओवरलैप करेंगी? मतलब सिचुएशन ये है कि लेट्स से 4 बजे क्या सिचुएशन बनने वाली है मेरी? अगर मैं एग्जैक्टली 4 बजे की बात करूं तो 4 बजे मेरी जो सिचुएशन है, ये 4 बजे सिचुएशन है, ठीक है। अब होगा क्या? 4:20 पे ये सुई, जो बड़ी छोटी वाली सुई यहां इसके पास आ जाएगी, लेकिन ये वाली भी आगे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो 4:20 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अब सवाल ये कितने बजे दोनों सुई ओवरलैप करेगी? ओके, अब इसको समझना कैसे है? इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का गैप है ये बताओ पहले। ये 30 डिग्री है, टोटल गैप कितना है? 120। 120 डिग्री का क्या है? गैप। ये गैप कवर करना है ना, ये 4 है मान लो, मतलब ऐसा थोड़ी ना ये 120 चलेगी तो ये नहीं चलेगी, लेकिन हमें 120 डिग्री का गैप कवर करना है, चलना नहीं है, ध्यान रखना। कवर का मतलब ये चलेगी तो ये भी चलेगी, उसको कंसिडर कर लिया आपने। 1 डिग्री कितनी देर में कवर होता है? 1 डिग्री चलता है या कवर होता है बताओ? कवर होता है। 1 डिग्री क्या है? कवर होता है। हमें कितना कवर कराना है? 120 डिग्री। कितनी देर में होगा? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो कितना बनेगा? 120 2/11 240/11 2 जा 22 11 1 जा 11। इसका मतलब है 4:21 9/11 पे दोनों सुई ओवरलैप करेगी, इसका आंसर है। 1 डिग्री का गैप कवर कितनी देर में कर रही है? अगर हमें इसको ओवरलैप कराना है, यानी ओवरलैप मतलब बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई के ऊपर आ जाए, तो अपने को कितने डिग्री कवर कराना है? 120 डिग्री मल्टीप्लाई करके 240/11 हो गया, यानी इतना मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 240/11 मिनट। हाँ 200। अब उसको सॉल्व कर दिया कि 240/11 मिनट कितना होता है,
21 9/11 के बराबर होता है, तो मैंने 21 9/11। अगर कोई सेकंड में करना चाहे तो 9/11 को इंटू 60 कर दोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? अगर मैं बोलूं 5 से 6 बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेगी, क्या आंसर होगा? 5 कितना आ जाएगा? 300/11 कितने बजकर? 5 बजकर 300/11 लेकिन 300 हमेशा जब भी ऑप्शन में आप देखोगे ना तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया जाता है, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको 300 को 11 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मुझे बताओ 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा? कैसे करेंगे? अभी 4 बज रहे हैं, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे होगा? थर्टी इंटू देखो अभी दोनों के बीच में कितना एंगल है? 120। 90 चाहिए तो बेसिकली अपने को 30 डिग्री कवर कराना पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कवर कराना, ध्यान रखना, क्योंकि कवर का मतलब ये चलेगा तो ये भी चलेगा। तो 30 कवर कराना है अपने को, तो 30 इंटू 2/11 कितने बजे के बाद? 4 बजकर, यानी 4/60/11। तो 60/11 कितना हो जाएगा? 5/5/11, यही बनेगा। ये तो पहली बार है। जब ये सुई ओवरलैप करके नीचे की तरफ आएगी तो भी तो 90 डिग्री बनेगा। पहली बार जब 30 पे बना तो अगली बार इसमें 180 डिग्री और जोड़ दो, क्योंकि ओवरलैप करेगी 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री का गैप क्रिएट करेगी। तो 4/180 की जगह 210 हो जाएगा, मतलब 30 प्लस 180 इंटू 2/11, तो 210/11 1 जा 11 0 1 0 11। ये कुछ गलत कर रहा हूं मैं, डबल नहीं किया मैंने। ओके ठीक है, हाँ वो कुछ ही निकालना है अपने को, क्योंकि वही आएगा एग्जाम में। 210 420/11, 11 से 33 9 11 8 जा 88 2, तो 4/38 2/11। एक बार तो ये हो गया और एक बार ये हो गया। अभी ये 120 डिग्री का गैप है, 90 डिग्री बनाने के लिए दिस मस्ट मूव 30 डिग्री। कितने टाइम में मूव करेगी? कितने टाइम में मूव करेगी? बस मूव मतलब कवर करेगी 30 डिग्री। हाँ तो मान लो ये आ गया 4-5 पे लगभग होगा, फिर उसके बाद एक और 90 डिग्री बनेगा। पहले ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री का गैप क्रिएट करेगा। है? हाँ तो वो 5 से 6 है, अभी 4 से 5, ये 4 से 5 के बीच में ही तो है 4:38 जो है, और 4:05 भी 4 से 5 के बीच में। 30 तो पहले, ये 30 यहाँ पे आ गया, इस 30 में 180 ऐड करना है ना। फर्स्ट 90 डिग्री 30 के बाद बनेगा, फिर सेकेंड 90 180 प्लस करना पड़ेगा तब बनेगा। हर घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता है? हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे 4 से 5 ले लो, 5 से 6 ले लो, 6 से 7 ले लो। तो 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? हर घंटे में अगर 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? क्यों? वो तो है, वो तो 180 तो हो गई ना, हमें तो 90 चाहिए।
वो ओवरलैपिंग है। प्रॉब्लम आएगी 3 बजे और 9 बजे, क्योंकि 3 o'clock itself is 90 डिग्री। 9 आइडियली मान लो ये 8 बज रहे हैं, 8 से 9 2 बार होना चाहिए और 9 से 10 2 बार होना चाहिए, लेकिन सिंस 9 o'clock itself is 90 डिग्री, तो बेसिकली 4 बार की बजाय वो 3 बार होता है। सेम प्रॉब्लम आती है 3 o'clock में, 2 से 3 2 बार होना चाहिए, 3 से 4 2 बार होना चाहिए। सिंस 3 o'clock is 90 डिग्री, 4 बार की बजाय 3 बार होता है, तो 12 घंटे में 24 बार होने की बजाय ये 2 बार कम करना पड़ता है, तो 12 घंटे में वो 22 बार होता है। इनफैक्ट ये सारे एंगल्स के साथ ऐसे ही होता है, एक्सेप्ट ओवरलैपिंग एंड 180 डिग्री। 12 घंटे, हर घंटे में एक बार ओवरलैप हो रही है, तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होनी चाहिए? हाँ, बट होती नहीं है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, मान लो मैंने कहा 11 से 12 में ओवरलैप कराना है, बताओ करा के दिखाओ कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा ओवरलैप के लिए, कितना डिग्री कवर करना है इसको? ओवरलैप कराना है 11 और 12 के बीच में, कब होएगा? ग्यारह से 12 के बीच में कितने बजे ओवरलैप होगा? ये फास्ट चल रही है, कितना डिग्री कवर करना है? 330 डिग्री। तो टाइम कितना लगेगा? 11:330 इंटू 2/11, 11:60। तुम सर, चुप ये हो जाओ, आवाज समझ सही में है? आ जाएगा सबको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 11 से 12 बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेगी? ठीक, ओवरलैप करने के लिए इस बड़ी वाली सुई को 330 डिग्री इसके ऊपर आना पड़ेगा, तो 330 डिग्री कवर करने के लिए इंटू 2/11 करना पड़ेगा, तो 330 इंटू 2/11, 11 3 जा 33 होता है, तो 11:60 पे ओवरलैप करेगी। 11:60 का क्या मतलब? 12 बजे। यानी 11 से 12 के बीच की जो अगर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो एग्जैक्टली 12 बजे होती है। तो अगर मैं 12 से 1 के बीच की ओवरलैपिंग की बात करूं, मान लो, समझ में आ रहा है? मान लो ये 12 बज रहे हैं, तो 11 से 12 वाला तो 12 पे आ गया। अब 12 से 1 के बीच में अगर इसको ओवरलैप करना है, कितना डिग्री कवर करना है इसको? 360 डिग्री। तो 12:360 इंटू 2/11 करना पड़ेगा, तो बनेगा 720/11। 11 6 जा 66, 6 11 5 जा 65, 5। तो क्या 12:65 5/11 लगेंगे? 12:65 का क्या मतलब होता है? 1:05। यानी 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होती है, इसलिए 12 घंटे में वो 11 बार ओवरलैप होती है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से 180 डिग्री कितनी बार बनाती है? 12 घंटे में 180 डिग्री एक बार। 12। दिक्कत पता है कहाँ आती है? 6 बजे अपने आप में 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बना पाती है, तो 12 घंटे में 11 बार। यह है ओवरलैप, यह है ओवरलैप, और यह है 180 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनाती है? समझ में आ रही बात? 22 बार। समझ, हर घंटे में 2 बार, सिर्फ 3 और 9 बजे की प्रॉब्लम है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कैट का क्वेश्चन, इन 24 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स आर द नीडल्स इन स्ट्रेट लाइन? कितना आंसर आना चाहिए? In how many, in 24 hours, how many times the needles are in straight line? 22? The answer was 44.
फर्स्ट ऑप्शन वाज 22 बट आंसर इज 41। क्यों? स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, और ये 180 डिग्री ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो 180 डिग्री 22 बार बनेगा और 0 डिग्री भी 22 बार बनेगा। तो 44 बार 24 घंटे में दोनों स्ट्रेट लाइन में होती हैं। और अगर 90 डिग्री के एंगल की बात करो वो भी 24 घंटे में 44 बार बनता है। एक टाइप के क्वेश्चंस तो यही आते हैं कि वो इतने बजे से इतने बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेगी, कितने बजे 90 डिग्री बनाएगी, कितने बजे 180 डिग्री बनाएगी, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है 11:15 बजे दोनों सुई के बीच में एंगल कितना है। कुछ भी टाइम हो सकता है, 3:15, 3:20, 3:25, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। एक तरीका तो यही मेथड है। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं, उससे ये सारे कुछ अगर भूल भी जाओ तो भी निकल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस, अब 2m, अभी समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपने को ओवरलैप कराना है। अपन अभी ऊपर किया था ना, 4 से 5 के बीच में ओवरलैप कराया था ना, ये 90 डिग्री बनाया था, ओवरलैप कराया था, है ना। तो ओवरलैप कराने में दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो 0 h 11 h का मतलब हमें 4 से 5 चाहिए था ना, तो 4 बजकर कुछ आएगा आंसर मेरा। तो ये 0 मॉड हटाएंगे, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2m, उसको इधर लेके जाओगे। 120 इज इक्वल टू 11/2m, m इज इक्वल टू 240/11, यानी 4 बजकर 240/11। तो 11 2 जा 22, 11 1 जा आ गया 4 बजकर 21 9/11, जो हमने पहले सॉल्व किया था। समझ में आया? हाँ बिल्कुल इजी है। हमें 4 और 5 के बीच में ओवरलैप कराना है, यानी मेरा आंसर 4 बजकर कुछ तो आएगा, बिकॉज 4 और 5 के बीच में ओवर है। तो 4 बजकर कुछ आएगा, तो आवर मेरा 4 हो गया। वो मिनट ही तो निकालना है, 4 बज के कितने मिनट पे, और एंगल कितना चाहिए? 0, एंगल 0 ले लें। बट फार्मूला है बस। क्यों लिया, मतलब यहां सब कुछ लेके समझाना पड़ेगा। जैसे अपन ऊपर किया ना, ये इतना माइनस फिर उतना प्लस, वो सब करेगी जुगाड़ तो आ जाएगा। अब मान लो मैंने ये कहा कि 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल चाहिए अपने को। कितने डिग्री का एंगल चाहिए? 90। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 90 मॉड ऑफ 30h, h क्या लूं मैं? 4, क्योंकि 4 बजकर कुछ मिनट ही होगा आंसर, माइनस 11/2m। अब मॉड क्यों लिया? मॉड जब खोलते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 0 में तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने प्लस ले लिया तो 90 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2m आएगा। इसको यहां ले जाएंगे तो माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 11/2m आएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 60/11। तो ये आ जाएगा 5/11, यानी पहला आंसर आएगा 4 बजकर 5/11, जो अपन ने यहां निकाला होगा कहीं। ठीक, दूसरे में क्या आएगा? चूंकि प्लस है, अब दूसरे में -90 आएगा। -90 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2m, ये इधर आ जाएगा। तो -210 इज इक्वल टू -11/2m, ये खत्म हो जाएगा। तो बनेगा 420/11 इज इक्वल टू m। तो कितना आ जाएगा? 420/11, 3 जा 33, 90, 11 8 जा 88 2। तो यानी कि 4 बजकर 38 2/11 सेकेंड। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था कि मान लो 9:15 बजे एंगल निकालना है, 9:15 पे एंगल निकालना है, तो थीटा निकालना है अपने को। मॉड ऑफ 30h 9 माइनस 11/2, ठीक है, m यानी 15। अच्छा, तो बस इंटू 15। हाँ बस हो, कर लोगे, बस हो गया आंसर खत्म। सारे क्वेश्चन इससे निकल जाए।
स्टार्टिंग ये देख 11/2 देख यहाँ से आया, क्योंकि ये सेगमेंट में 30 होता है, इसलिए हर घंटे में 30 डिग्री का मूवमेंट होता है। हाँ वो तो एक, या चाहे एक्यूट ले ले चाहे ऑब्ट्यूस ले ले, एंगल अगर ऐसे आए या तो ये लेगा या 360 में से माइनस कर दे तो भी दूसरा वाला आ जाएगा, बस है। अच्छा ठीक है सर ये दो आंसर कैसे निकले सर? वो एक क्या चीज सर अब ये दो चैप्टर आंसर कैसे निकले? वो क्या -9 है, मॉड है ना इसलिए माइनस नहीं आएगा। मान ले ये नेगेटिव हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसमें ना 15-20 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। बट रॉन्ग वॉच, करेक्ट वॉच, पेंडुलम वॉच। हिमांशु सर आगे क्या ऊपर? पता नहीं, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप के और है, वो करवा देता हूं, देन वी कैन रैप दिस चैप्टर, ठीक है। नॉर्मली करेक्ट वॉच और अच्छा एक चीज तो ये कि एक बार सुई ओवरलैप करेगी तो अगली बार ओवरलैप करने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 65 5/11, आपको ये याद रखना है। एवरी ओवरलैप विल ऑलवेज हैपन एट 65 5/11 मिनट्स। अगर मान लेते हैं एक घड़ी वो 66 मिनट्स में ओवरलैप कर रही है, तो इज इट गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम? एक बार ओवरलैप है, सेकेंड ओवरलैप के लिए 65 5/11 मिनट्स लगते हैं, लेकिन एक घड़ी खराब है वो 66 मिनट्स में ओवरलैप कर रही है, तो इज इट गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम? गेन का मतलब होता है घड़ी फास्ट चलना, उसको गेन बोलते हैं। जब घड़ी स्लो चलती है तो उसको बोलते हैं इट इज लूजिंग टाइम। तो घड़ी में अगर गड़बड़ होती है या तो फास्ट चलती है या स्लो चलती है, तो यहाँ पे ये टाइम गेन कर रही है, लूज कर रही है? टाइम लूज कर रही है। जो काम उसको 65 मान लो 65 मिनट में करना था वो 66 मिनट्स में कर रही है, तो ज्यादा फास्ट है स्लो है? स्लो है, तो टाइम ये लूज कर रही है। कितना लूज कर रही है? लूजिंग टाइम 66 माइनस 65 5/11, कितना टाइम हो गया? 6/11 मिनट्स लूज कर रही है। कितनी देर में? मान लो क्वेश्चन ये है कि 12 बजे अपन ने दोनों की घड़ी सेट कर दी और ये इतनी देर की बजाय इतनी देर में वो ओवरलैप कर रही है, तो जब रात दिन में 12 बजे ठीक है, जब रात के 12 बजेंगे तो हमारी घड़ी स्लो है? कितनी स्लो है? 6/11 स्लो है कितनी देर में, ये तो पूछ रहा हूं। 66 मिनट्स में बेटा, ये आंसर आएगा, ये समझाना है। 1 घंटे में थोड़ी ना कम हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि एक सुई है, एक बार ओवरलैप करने, अगली बार जब ओवरलैप करती है ना तो 65 5/11 मिनट लगते हैं, लेकिन जो अब ये जो सुई है ये ओवरलैप करने के लिए ना 66 मिनट्स लगा रही है, तो ज्यादा टाइम लगा रही है। इसका मतलब धीरे चल रही होगी। कितने धीरे चल रही है? कितनी देर में धीरे चल रही है? ये लूज कर रही है टाइम। कितनी देर में इतना टाइम लूज कर रही है? 66 में लूज कर रही है। तो अगर 12 घंटे में कितना टाइम लूज करेगी तो इंटू 12 घंटे मल्टीप्लाई कर दो। ये कह रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में 1 आवर नहीं आएगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अभी रुको, अभी क्लास चल रही है, 5 मिनट 10 मिनट लगो। समझ में आ रही बात? शांति शांति, अभी रुक जा। अगर 66 की बजाय 65 मिनट्स में ओवरलैप कर रही होती, फिर कितना गेन करती? कितनी देर में गेन करती? 65। तो 12 घंटे में कितना करती? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 24 घंटे में इंटू 24। ठीक है, एक टाइप समझ में आ रहा है, ये ओवरलैपिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब मान लेते हैं एक करेक्ट वॉच है मेरी और एक रॉन्ग वॉच है मेरी, ठीक है। इसमें भी 4 बज रहे हैं, इसमें भी 4 बज रहे हैं। अब ये जो रॉन्ग है ना, ये 2 मिनट्स फास्ट चलती है पर आवर।
2 मिनट्स फास्ट चलती है पर आवर। तो जब ये करेक्ट वॉच में 6 बजेंगे तो गलत वॉच में कितने बजेंगे? क्यों? हाँ, 2 कितनी 6:04 पक्का समझ में आ रहा है? एक करेक्ट वॉच है और एक जो रॉन्ग वॉच है, रॉन्ग मतलब खराब है। और क्या खराबी है? वो हर घंटे 2 मिनट फास्ट चलती है। इट इज गेनिंग 2 मिनट्स। ठीक है, तो जब सही घड़ी में 6 बजेंगे तो जो खराब वाली घड़ी उसमें कितने बजेंगे? 6:04, क्योंकि हर घंटे में 2 मिनट आगे है तो 2 घंटे में वो। ठीक, क्वेश्चन ये है जब इसमें 6 बज रहे होंगे तो इसमें कितने बज रहे होंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा इतना तो समझ में आ गया होगा कि 56 मिनट तो नहीं ही होगा। ठीक है, अब ये समझो क्यों नहीं होगा और कितना होगा। नहीं नहीं, 56 मिनट नहीं होगा यश। अभी 5 मिनट 10 मिनट बोल दो बच्चों को, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हो क्या रहा है आप ये समझिए, ये करेक्ट वॉच है, ये रॉन्ग वॉच है। देखिए जब ये 60 मिनट चलती है तो ये 62 मिनट चलती है, यही बात है। तो 2 घंटे के लिए इसको 120 मिनट चलना पड़ेगा, तो ये कितनी चलेगी? यही सवाल था, 124। तो गलत वाली घड़ी में 124 मिनट मतलब 2 घंटे 4 मिनट, तो 6:04 आपने आंसर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में ये करेक्ट वॉच, ये रॉन्ग वॉच, ये 60 मिनट चलती है तो 62 मिनट चलती है। अब 6 किसमें बजाने हैं? इसमें। तो इसके अंदर 120 चलेगी तो इसके तो 6 बजेंगे ना गलत वाली के। भाई गलत वाली के 120 मिनट चलेंगे तब गलत वाली में 6 बजेंगे। तो जब ये 60 तो ये 62 तो 120 तो ये कितना? 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 62। तो 2 30 में जाएगा, 31 में जाएगा, कितना बनेगा? 3600। 3600 बटा 31, तो 31 से कम, 31 5 0 1 31 10 में से गया 9 1 0। 8 में जाएगा ना? नहीं 8 में, 17 में जाएगा, 7 21, यही किया ना। 6 में जाएगा 18, 6 में जाएगा 186 4, यानी 116 4/31 मिनट बनेगा। 116 में 60 मिनट माइनस कर दिया तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 56 4/31 मिनट, यानी इसमें टाइम कितना बज रहेगा? 5:56 4/31। ये आंसर है इसका। जस्ट होल्ड ऑन, अभी क्लास चल रही है बेटा, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये? ओके, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट्स एन इजी क्वेश्चन। पेंडुलम समझते हो? पेंडुलम वाली जो घड़ी होती थी, जब उसमें 4 बजते थे तो 4 बार आवाज आती थी, टंग 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 ऐसे, है ना। 5 बजते हैं तो 5 बार। तो क्वेश्चन ये है कि जब 4 बज रहे हैं 4 o'clock, तो 4 बार आवाज आती है तो आपको 4 सेकंड तक सुनाई देती है। तो जब 6 बजेंगे तो 6 बार साउंड आएगा तो कितने सेकंड सुनाई देगा? 4 सेकंड ही क्यों? जब 1 बजते हैं तो 1 बार आवाज आती है, टंग, बंद हो जाती है। हाँ, नहीं जब 4 बार बजेंगे ना तो 4 आवाज सुनाई दे रही है, 4 आवाज सुनाई देगी ना, टंग 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 टंग, इसके 4 सेकंड है। तो जब 6 बजेंगे तो टंग 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 टंग। टाइम बता, ये पूछ रहा हूं मैं तेरे से। है? अच्छा, कितने आगे? क्या इधर इसी रूम में होनी है क्या क्लास उनकी? वो जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उनकी इकट्ठी होनी है क्या जीके की क्लास? हाँ, इनकी जीके की है ना, और वो सीयूईटी वाले बच्चों की वो बिठा दिया क्या वहाँ पे? हाँ बस ठीक है, यहाँ आ रहे थे ना, मैंने कहा चलो बस आगे क्या वो, बस 5 मिनट। आखिरी क्वेश्चन है, उनका लैपटॉप लगाना है क्या?
चल ठीक है, कोई बात। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन ये है, देख पेंडुलम समझता है, पेंडुलम जो घड़ी घर में होता है वो ऐसे से हिलते हैं, ठीक है। तो जब जितने बजते हैं ना तो उतनी बार आवाज आती है। तो जब 4 बजे ना तो 4 बार आवाज आई और आपको 4 सेकंड तक आपको कान में सुनाई दी। तो जब 6 बजेंगे तो 6 बार आवाज आएगी, कितने सेकंड तक सुनाई देगी? क्यों? उसको क्यों देगा? ओके, अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 6 सेकंड तो इसका आंसर नहीं होगा, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ इसका 6 सेकंड तो आंसर नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या आप ये समझो, और ये कैसे हैंडल होगा ये समझो। मान लेते हैं मैंने आपको कहा कि अभी अभी आवाज आनी शुरू। ये आवाज पहले जो पुराने वॉच होती थी ना, ये यहाँ पे हैमर एंड टोंग होता था, ये इसको हिट करता था तब वो आवाज आती थी, टंग ऐसे, ठीक है। मैंने आपको कहा कि अभी 4 बजने वाले हैं, अभी पेंडुलम की आवाज आएगी। आप मुझे ये बताना कि कितनी देर तक आपको आवाज सुनाई दी, कैसे पता लगाओगे? टाइमर से घड़ी लेके खड़े हो जाओगे, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच स्टार्ट कब करोगे? हैं? जब कान में आपकी पहली आवाज आ जाएगी तभी तो आप स्टार्ट करोगे। यानी व्हेन दिस पेंडुलम हैज हिट दिस, यानी जब फर्स्ट साउंड आ गया तब तो टाइम तो पास नहीं हुआ ना। अब टाइम क्यों लगता है? टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये पीछे जाता है, फिर आके हिट करेगा, ये सेकंड हिट करेगा, अब टाइम चालू हो गया। फिर जाके आएगा, फिर हिट करेगा, थर्ड टाइम, टाइम चालू है। फिर जाके आएगा, चौथा हिट करेगा। जैसे ही चौथा हिट करेगा आपने टाइम बंद कर दिया। अब आपने ये टाइम ऑब्जर्व किया 4 सेकंड का। अब टेक्निकली ये 4 सेकंड में हो क्या रहा है? 3 बार ये आ रहा है जा रहा है, इसको ऑक्सीलेशन बोलते हैं। सो 4 सेकेंड्स इज फॉर 3 ऑक्सीलेशंस। समझ में आ रही बात? तो जब 6 बजेंगे तो जब 6 बार आवाज आएगी, कितने ऑक्सीलेशन का टाइम नोट करना है पड़ेगा? 5 ऑक्सीलेशन। यानी 3 ऑक्सीलेशंस का टाइम जो है वो 4 सेकंड है, तो 5 ऑक्सीलेशंस का टाइम कितना हो जाएगा? इसका आंसर आ रहा है इसमें? या ऐसा तो नहीं है ना वो आ रहा है घंटा कर आ रहा है चालू कर देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। स्मूथ क्या नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूं है। हाँ रुको 2 मिनट शांति से बैठो। मैं ये कह रहा हूं कि 4 बजेंगे, अभी आपको आवाज सुनाई देगी। मैंने कहा टाइम नोट करना है आपने। मैंने क्या कहा? आप टाइम घड़ी लेके खड़े हो जाओगे। टाइम कब चालू करोगे? पहली आवाज आ गई, टाइम चालू किया, फिर वो आवाज ऐसे आती है, वो पेंडुलम जाता है, फिर हिट करता है। सेकंड हिट, सेकंड साउंड आएगा, आपका टाइम चालू है। फिर जाके आएगा, फिर हिट करेगा, आपका टाइम। फिर जाके आएगा, फिर हिट करेगा, टाइम चालू है। आने जाने कितनी बार आया गया? 3 बार। 3 बार आने जाने का टाइम नोट किया आपने, कितना टाइम दिखाया आपको? 4 सेकेंड। समझ में आ रहा है? यानी जब 4 बजते हैं तो जब 4 बार कान में आवाज आती है, जो टाइम मेजरमेंट आता है वो कितनी बार का आता है? 3 बार का। जब 6 बजेंगे तो कितने बार का टाइम मेजरमेंट करना पड़ेगा? 5 ऑक्सीलेशन का। जब 4 बजे थे तो 3 ऑक्सीलेशन का टाइम मेजर हुआ था, तो जब 6 बजेंगे कितने ऑक्सीलेशन का टाइम मेजर होगा? 5 का। तो बस यूनिटरी मेथड लगा लो। 3 ऑक्सीलेशन के लिए 4 सेकंड लगते हैं, तो 5 ऑक्सीलेशंस के लिए कितने सेकंड लगेंगे? क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल, एलिगेंट बट गुड क्वेश्चन। शुड नॉट। हाँ, so this takes care of your this particular chapter. ठीक है, that's all from my side. Online guys also thank you so much and have a nice day guys. हाँ 2 साल में एक क्वेश्चन आता है।